Good morning, student. In our mathematics of standard 10th, here we are going to start new chapter number 3, pair of linear equation in two variables, and it is part number 1. In this part, we are going to introduce the pair of linear equation in two variables. In earlier class, standard 9, you have studied the linear equation, the quadratic equation and the cubic equation in a one variable in standard 9. We know that if you want to find or if you want to solve the equations given in one variable, then it is required one equation, then we can solve it, and after we can find zeros, and also we can say the root or the solution of given polynomial. Now in this lecture, in this chapter, we are going to take two linear equations. We are going to take two linear equations, that is a pair of linear equations in two variables. If there is given one variable in this type of algebraic expression, then it is required only one equation to find its solution. But if there are given two variables in one equation or one algebraic expression, then we have to take two equations of two variables to find the values of two variables. As we know that x, y, z are the alphabetical variable that we use in this algebraic expression. So here we want to find if we take x and y as a two variables, and if we want to solve these two variables, or we want to find the value of x and y, then we have to take two linear equations, that is a pair of linear equations. In this lecture we are going to study only the linear equations, Now you know that what is a linear equation. You have already studied that if the power of variables of terms in given algebraic expression is 1, what is the power of or the exponent of the variable of terms of algebraic expression is 1 or degree is 1, then we can say that the given equation or given algebraic expression is linear equations. So, and we also know that in day-to-day life there are some puzzles that we want to find the unknown values. So we can find the unknown values by using mathematical puzzles. We can solve it by mathematically. So let we understand. Here there is given one अकेला है, एक फेयर है, अकेला उस फेयर में जाती है तो वहाँ पे कुछ राइड्स होती है, जाइंट व्हील, फिर कुछ ऐसे दूसरे वाली राइड्स होती है, तो राइड्स है, और एक गेम है हुपला गेम. वी नो दैट हुपला. व्हाट इज अ हुपला? Game in which you throw a ring on the item kept in the stall, and if the ring covers any object completely you get it. जो रिंग हम फेंकते हैं और जो रिंग है एज शोन इन फिगर, अगर वो रिंग है किसी भी टॉय पे और किसी भी चीज़ पे वो रिंग कवर उसे कर लेती है, तो वो चीज़ें हमारी हो जाती है. तो इस तरह की कुछ गेम्स होती है फेयर में, मेले में कुछ ऐसी गेम्स होती है, कुछ ऐसे राइड्स होते हैं. तो अकेला है उस मेले में जाती है, तो उसके पास कुछ पैसे हैं और उस हिसाब से पर राइड के कुछ रेट होते हैं, कॉस्ट होता है उसका. तो उसने कुछ राइड पे एंजॉय किया और
इस हुपला गेम है वो भी उसने ऐसे खेली। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा पजल दी गई है तो उन्हें सोल्व करना है, तो उससे हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो अकीला went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on giant wheel and play hoopla, a game in which you throw a ring on the item kept in stall, and if the ring covers any object completely, you got it. Here is given in the figure in the photo. The number of times she played hoopla is half of the number of rides she had on the giant wheel. So here we have not given the number of times played hoopla and the number of rides she had on the giant wheel. If each ride cost rupees 3 and a game of hoopla cost rupees 4, मीन्स अगर वो एक राइड कोई भी एक राइड करती है तो उसके कितने 3 रुपये है, और हुपला गेम प्ले करती है तो उसके कितने 4 रुपये है। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला प्रोवाइडेड शी स्पेंट ₹20? Now she had 20 rupees. So we separate 20 rupees in such a way that we can find the total cost 20 rupees. Here given the cost of one ride is 3 rupees and the cost of playing hoopla is 4 rupees. Means we want to find the number of rides she had and the number of game she played the hoopla. So we have to assume some number. So let us try this approach. Denote the number of rides Akila had by X. जो अकीला ने जाइंट व्हील पे जो राइड्स की, मानो कि हमें पता नहीं है कितनी राइड्स की, तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, उसको हम एक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? एक्स कह देते हैं। अननोन वैल्यू है एक्स। द नंबर ऑफ राइड्स दैट अकीला हैड बाय एक्स एंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला बाय वाई। तो नंबर ऑफ राइड्स उसको हम एक्स एंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला दैट इज वाई। नाउ द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 इक्वेशंस। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन मिलते हैं। पहला कौन सा? तो यहाँ पे आप पढ़े, 2 बार आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इफ ईच राइड को सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पे द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स, मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला दैट इज वाई, it is a half of the number of rides she had on the giant wheels, means half of x. Then we get one equation, that is the number of hoopla she played, y is a half of the number of times she rides the giant wheel, means x, half of x. Then we put the equilibrium equation between both the terms. Then we get y is equal to half x. What we get? Y is equal to half of x. It says that the number of times she played hoopla is a half of the number of times she rides the giant wheel. Then we get y is equal to half of x, and it is equation number 1. Now we can also find the next equation as given in the question, that is if each ride cost ₹3, means the number of times she rides the giant wheel that we denote by x. If we want to find the cost of ride, then we multiply x into 3, because the one ride
the cost of one ride is 3 rupees and the number of ride is x. So we multiply both the 3 and x, we get 3x, and the game of Hoopla cost rupees 4, and we know that the number of times she played Hoopla is y. So the total cost of she played Hoopla, that is 4 into y, as we get here 4 into y. So she had 20 rupees. What? She had 20 rupees. Means she expend playing Hoopla and riding the giant wheel. The total cost will be equal to the 20 rupees. So 3x plus 4y is equal to 20. यहाँ पे मैं जो 3x क्या है कि 3 है वो कॉस्ट जो है एक राइड का है, तो ऐसी कितनी राइड होगी जो उसने उसको जाइंट व्हील उस पर राइड किया होगा, तो उसको 3x से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 है कॉस्ट है और नंबर ऑफ राइड्स x है, तो उसे 3x. As well as she played Hoopla and cost of playing one Hoopla, that is rupees 4, and number of times she played Hoopla, that is y. So we take the multiplication of 4 and y, that is 4y. That is the cost of riding giant wheel, and the cost of playing Hoopla will be equal to the 20 rupees. So we get next equation 3x plus 4y is equal to 20. So we have found here such type of algebraic expression in two variable. Here you can see that x and y are two variables, and we find two linear equation. Also you can find here the variables x and y have exponent 1. So both the equation are known as linear equation, and 1 and 2 are known as the pair of linear equation in two variables, because here given equation are linear equation and also it is in two variables. Now can we find the solution of this pair of equation? There are several ways for finding this, which we study in this chapter. Means we are going to find the value of x and y from given two equation, and also we can say that we are going to find the solution of both the variables. So we are going to study the pair of linear equation in two variables. Recall from class 9 that the following are examples of linear equation in two variables. Let me take some example. 2x plus 3y is equal to 5. It is linear equation in two variable. As you can see here, x and y have one exponent as a 1. So or we can say that the degree is 1. So it is linear in two variable. Next one, that is x minus 2y minus 3 is equal to 0. It is also a linear equation. If we so x and y in x and y, and x minus 0y, that is x is equal to 0, x is equal to 2. Here we can take 0 into y, that is 0. Then we get x is equal to 2. It is also a algebraic expression or algebraic equation in a one variable, in two variable. So you also know that an equation which can be put in the form ax plus b dy plus c is equal to 0. यहाँ पे जो इस तरह का एक्सप्रेशन है ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0, means we cannot take a and b 0 at a time. If a is 0, then b cannot be 0, and b is 0, then a cannot be 0 at a time. So a and b are not both 0.
is called a linear equation in two variables x and y. So this type of algebraic expression, if they are given any algebraic expression of this type ax plus by plus c, then we can say that this one is a linear equation. We often denote the condition a and b are not both zeros by a square plus b square does not equal to 0. Means the positive square, summation of positive square, positive value is not equal to 0. Means we can also denote a and b are not both 0 as the a square plus b square does not equal to 0. It means that a and b are not both 0 at a time. Okay, it shows that s and b are not both 0 at a time. It is, in short, we can say that a square plus b square does not equal to 0. We denote by it. You have also studied that a solution of such an equation is a pair of values, one for x and the other for y, which makes the two sides of the equation equal. Means if we put some value of x and y and then we get LHS and RHS are equal. If we take some value for x and some value for y and we put in this equation, and both the side of this equation LHS and RHS are equal, then we can say that the given value of x and y, the given value of x and y are the solution of given algebraic equation, linear equation. So let take some example. For example, let us substitute x is equal to y and y is x is equal to 1 and y is equal to 1 in the left hand side LHS of the equation 2x plus 3y is equal to 5. We take x is equal to 1 here and y is equal to 1 here. In LHS we get 2 into 1 and 3 into 1, which is equal to 2 plus 3, which is equal to 5. So here you can see that the LHS is equal to the RHS of given equation, which is equal to the right hand side RHS of the equation. Then therefore x is equal to 1 and y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to 5. As we have studied in polynomials, if we put the value of any variable in a given polynomial and it makes polynomial equal to 0, then we can say that the given value is a solution of given polynomial or solution root of polynomial, or it is a 0 of polynomial. As well as here in these equations that were polynomials and it is a equation. So for an equation, if value of variable, if you put the value of variable in given equation and it makes both the side are equal, then we can say that the value of variable is a solution of given equation. Now more one example. Now let us substitute x is equal to 1 and y is equal to 7 in the equation 2x plus 3y is equal to 5. Then we get LHS as 2 into 1 and 3 into 7, which is equal to 2 plus 21, that is equal to 23, and which is not equal to the RHS. So that we can say that therefore x is equal to 1 and y is equal to 7 is not a solution of equation. So by this way we can find the solution of given equation by putting the different values of x and y in the given equation. Now let me say geometrically, what does this mean? It means the point 1 1 first one is the value of x according to x axis, and the next one is a coordinate of y axis.
this one is x and this one is y. The pair we can say the x y. It is a pair of is coordinate of one point on the graph x and y. The first value shows that the value of x and the next value means second value shows the values of y. तो यहाँ पे जो पेयर दी गई है 1 1 ए एक कोऑर्डिनेट है जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक कोऑर्डिनेट ग्राफ में कोई भी पॉइंट होता है तो उसका पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसे हम 1 1 से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की होगी और जो सेकंड वैल्यू है वो y की होगी। x होता है वो x एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं और y होता है उसका वैल्यू y एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन 2x plus 3y equal to 5 because 1 1 is the solution of given equation 2x 3y is equal to 5 and it is a linear equation, so it is a equation of line. What it is a equation of line. If we draw a graph of given equation, then we can draw a line on a, we can find the line on a graph and the point 1 7 does not lies on it. If any solution, if any point pair is solution of given equation, then it lies on the equation 2x as given here, and if the given pair of x and y is not solution of given equation, then it does not lies on it. So every solution of equation is a point on the line representing it. As well as, in fact, this is true for any linear equation. That is, each solution x and y, we can write the coordinates of x-axis and the coordinates of y-axis for any point on a graph as x and y. It is a coordinates of point, any point. If we denote any point on a graph, then it is a coordinate of that point. So the each solution x, y, that is the point of a linear equation in two variables, that is xy plus by plus c is equal to 0, corresponds to a point on the line representing the equation. Means अगर एक्स वाई है उस वो जो कोई भी इक्वेशन है उसका अगर सॉल्यूशन वो निकाले, मीन्स आर एच एस एंड एल एच एस इक्वल टू कर दे वो जिसकी वैल्यू है, तो वो जो पॉइंट होता है वो करेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होता है उस पे वो लाइक करता है, एज वेल एज वाई वर्सा। मीन्स अगर ये पॉइंट है उसका सॉल्यूशन हो ए इक्वेशन है तो इस पॉइंट में से जो ये लाइन हो वो उसमें से कट आउट होगी। तो अब नाउ कंसीडर इक्वेशन 1 and 2 given above. The equation taken together represent the information we have about अकीला एट द फेयर। जो अकीला ने फेयर में गई थी तो उस वक्त जो हमने दो इक्वेशन निकाले थे, y is equal to 1 of x, that is the number of she played hoopla is a half of the number of rides on a giant wheel, and other one, the cost of playing hoopla is 4 and the cost of riding the giant wheel is 3. Then we get the total cost 3x plus 4y is equal to 20. That two equation, if we take together them, these two linear equation are in the same two variable x and y. As we know that equations like these are called pair of linear equation in two variables. So if two equation are given in the same variable, so these two linear equation are known as
pair of linear equation in two variables. In the general form, for a pair of linear equation in two variables x and y. So we take a1 as a coefficient of x and b1 as a coefficient of y for the first equation. Then we get the first equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, where a1, b1 and c1 are coefficient of x and y or the given terms. As well as we want to write the next equation, then we take a2, b2 and c2 as a coefficient. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. So these two equations are known as a pair of linear equation in two variables, where a1, b1, c1, a2, b2, c2 are all real numbers, and a1 square plus b1 square does not equal to 0, and a2 square plus b2 square does not equal to 0. It says that a1 and b1 are not both 0, and a2 and b2 are not both 0 at a time. In short, we can write a1 square plus b1 square does not equal to 0, and a2 square plus b2 square does not equal to 0. It means a1 and b2 are not both 0 at a time, and a2 and b2 are not both 0 at a time. You have also studied in class 9 that given two lines in a plane, only one of the following three possibility can be happen. अगर हम एक ग्राफ पे, यहाँ पे हमें पता है ये दोनों है वो लीनियर इक्वेशन है, तो हमें लाइन मिलती है. लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में ड्रॉ करें तो उसकी एक लाइन मिलेगी. क्या मिलेगा? लाइन ग्राफ मिलेगा. तो हमारे पास यहाँ पे दो लाइन है, तो दोनों लाइन को अगर ड्रॉ करें कहाँ पे? ग्राफ पे, तो हमें तीन प्रकार का यहाँ पे हमें ग्राफ मिलेगा. तो हम ड्रॉ करते, तो पहला वाला ग्राफ है, तो टू लाइन्स विल बी इंटरसेक्स एट वन पॉइंट. पहली पॉसिबिलिटी क्या है? अगर हम दोनों ग्राफ को ड्रॉ करें तो दो लाइन मिलेगी, तो दोनों लाइन है वो ग्राफ पे इंटरसेक्ट करती है एट वन पॉइंट. क्या होगा? वो एक पॉइंट पे हमें यहाँ पे उसका सॉल्यूशन मिलेगा. सो इस तरह का ग्राफ मिलेगा. दोनों का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों कोई भी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? तब टू लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल. मीन्स क्या होगा कि दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं करती, तो वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल होगी. सो इस तरह का ग्राफ मिलेगा. वो दोनों कहीं पर भी यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी. मीन्स अगर दोनों इंटरसेक्ट करती है, अगर हमें लाइंस का इंटरसेक्शन मिलता है तो दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन भी मिलेगा. क्या होगा? अगर दोनों जो लाइन है वो इंटरसेक्ट होती है तो ही हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो पैरेलल मिलेगी लाइन, दोनों लाइन, इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं. और वी कैन से दैट गिवन टू इक्वेशन आर सेम, सो दैट दिस टाइप ऑफ केस में भी हैपन. और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी? द टू लाइन्स विल बी कोस इनसाइड. मीन्स वो एक दूसरे पे लाई करती है. वन लाइन लाइज ऑन अनदर लाइन्स. मीन्स यहाँ पे जो दोनों लाइन है एक दूसरे पे से कोइंसाइड होगी, तो उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट मिलेगा. अगर उसका सॉल्यूशन वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देन इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन. If both are not same and both are parallel to each other, then it has not solution. And if both are coincide, both line are coincide, then it has infinite solution. How many solution? Infinite solution, and both equation are similar. So let me solve some example and understand this type of situation. Graphically we solve it graphically and also algebraically. Example number 1.
लेट अस टेक द एग्जाम्पल गिवन इन सेक्शन 3.1, वो अकेला वाला जो एग्जाम्पल है वो। अब अकेला गोज टू अ फेयर with 20 rupees and wants to have rides on the giant wheel and play hoopla. Represent this situation algebraically and graphically or geometrically. So solution, the pair of equation formed is as we have y is equal to half x। अब इसको हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख दें तो क्या होगा, 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा यहाँ पे, तो 2y हो जाएगा। अब 2y को हम RHS में भेज दे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इक्वल टू 0। तो हमें जो है y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, उसको सिंपल फॉर्म में हमने लिख डाला x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 which is equation number 2. Now we want to, this is known as a situation as a algebraically. It is a presentation of a algebraically presentation. Now we want to find the graphically presentation. So we have to find the solution of both the equation. So we want to draw a graph for both equation. So we have to take some value of x and y and have to put in given equation. So we get such type of table. Let us represent the equation graphically. For this we need at least 2 solution for each equation. We given सॉरी, जो यहाँ पे दोनों इक्वेशन, अब यहाँ पे x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो याद रखिए x और y की वैल्यू ऐसी आपको रखनी है। तो एक तो क्या कि वो इंटीजर मिले, अगर x की वैल्यू आप रखें तो y है वो इंटीजर में मिले। कैसे इंटीजर में, कि हमें जो x और y की वैल्यू है वो पॉइंट में उसके जो कोऑर्डिनेट मिले वो इजीली हम उसे रख सके, इसलिए x और y की वैल्यू ऐसी हम रखेंगे कि उस हिसाब से हमें जो x की वैल्यू रखे तो y की वैल्यू हमें इंटीजर में मिले। और दूसरा वो याद रखेंगे कि x और y की वैल्यू ऐसी रखे कि हमें x की वैल्यू ऐसी रखी कि y 0 मिले और y की वैल्यू ऐसी रखेंगे जो x 0 मिले। उस हिसाब से अगर इक्वेशन नंबर 1 का जो टेबल ड्रॉ करें तो पहले हम इस तरह का टेबल ड्रॉ करेंगे। तो x को अगर हम x की वैल्यू रखें तो हम y को सब्जेक्ट बना ले, क्योंकि x की वैल्यू रखने के लिए हमें y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसका इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलेगा इस तरह से, y को सब्जेक्ट बनाए तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x बाई 2 फ्रॉम हियर एज हियर गिवन। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें। हमें पता है कि अगर लाइन को ड्रॉ करना है तो हमें 2 और 3 कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, और ज़्यादा तो आपको चाहिए उतने ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट से आप लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसमें से एक की वैल्यू रखते जाएंगे और दूसरा में मिलता जाएगा। तो y, अगर हमें x की वैल्यू रखनी है तो y को सब्जेक्ट बनाना है, और अगर आपको y की वैल्यू रखनी है तो x को सब्जेक्ट बनाना है। तो हम मोस्टली क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे और y को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऐसा टेबल हम ड्रॉ करेंगे। तो x की वैल्यू हम 0 रखें, तो अब इस इक्वेशन में आप x इज इक्वल टू 0 रखें तो y क्या मिलेगा हमें 0, और x की वैल्यू 2 रखोगे आप तो y क्या मिलेगा हमें 2। और ये जो पॉइंट मिले ना हमें बन सके तो वो पॉइंट है वो 1 से 10 के अंदर सॉल्यूशन मिले ऐसा ही लिखेंगे करेंगे हम। x और y की वैल्यू ऐसी हम एज्यूम करेंगे, वो किस में, तो कि 1 से 10 में आ जाए ऐसी कहेंगे, क्योंकि 1 से 10 का ग्राफ छोटा मिलेगा, अगर बड़ी बड़ी वैल्यू लेंगे तो उसका ग्राफ बहुत ही बड़ा मिलेगा। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू छोटी वाली वैल्यू रखेंगे जिस हिसाब से हमें ग्राफ भी छोटा मिले। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 का टेबल। अब इक्वेशन नंबर 2 का टेबल। सो वी टेक द वैल्यू वी हियर एज वी हैव वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x, सो वी हैव टू मेक y एज अ सब्जेक्ट। अब y को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4y, 3x को 20 RHS में जाने दो तो 20 माइनस 3x हो गया,
अब हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो 4 है मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, तो 20 माइनस 3x बाय 4, तो y की वैल्यू हमें मिल गई। तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x बाई 4। अब क्या, तो कि हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। पहले तो 0 से शुरुआत करते हैं, अगर 0 रखे तो y की वैल्यू क्या मिली हमें 5। अब x की वैल्यू 20/3 रखे तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 0, और x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिले हमें 2। तो इस तरह से ऐसी हम वैल्यू रखेंगे कि हमें बड़े वैल्यूज़ नहीं मिले, x और y की हमें 1 से 10 में वैल्यू मिल जाए, ऐसी वैल्यू हम रखेंगे जिस हिसाब से हमें ग्राफ भी छोटा मिले, इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें इजीली फाइंड कर सके। इसीलिए अब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो किस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा, तो हमें अगर दोनों के पॉइंट कंसीडर करें तो पहला जो है ग्राफ है वो यहाँ पे है, पहली लाइन जो है जो ड्रॉ करने के लिए x माइनस 2y जो लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स, पहले कोऑर्डिनेट्स क्या है x 0 0, x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू 0 0, तो उसका जो पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, तो यहाँ पे हम पॉइंट रख देंगे, उसको पॉइंट कह देंगे a0 0। दूसरा उसका पॉइंट क्या था, तो कि दूसरा उसका पॉइंट था 4, दूसरा उसका पॉइंट था 2 1, दूसरा उसका पॉइंट क्या था 2 1, तो x की वैल्यू है 2 यहाँ पे और y की वैल्यू 1, तो y एक्सिस पे देखेंगे यहाँ पे, तो दोनों का पॉइंट कहाँ पे यहाँ पे आएगा, तो उसे हम b कह देंगे, क्या कह देंगे पॉइंट b, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 1, 2 दैट इज x एंड 1 दैट इज y। 2 है तो वो x पे होगा इस तरह से, और ये जो लाइन है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और y इज इक्वल टू 1 दैट इज 1, दोनों इंटरसेक्ट क्या हो गए यहाँ पे होगा, तो उसको b कोऑर्डिनेट्स 2 y, और अब क्या पे हमें 2 पॉइंट मिल गए a एंड b, तो उसमें से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, तो इन दोनों में से वो पास आउट होती हो, तो इस तरह से हमें एक लाइन मिली और उस पर हम लिख डालेंगे कौन सी लाइन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। नाउ अबाउट द नेक्स्ट लाइन दैट इज विच वन 3x प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 20, तो उसका पहला पॉइंट कौन सा था 0,5, x 0 एंड y क्या थी 5 थी, तो यहाँ पे पहला जो कोऑर्डिनेट है 0, इट इज रिगार्डिंग टू x एक्सिस, तो x एक्सिस पे 0 कहाँ होगा हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे, और y एक्सिस पे 5 कहाँ मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, तो हमें p के यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे p 0,5, और 4 x की वैल्यू 4 थी तब y की वैल्यू 2 थी, तो 4 x की वैल्यू 4 तो यहाँ पे मिलेगा, और y की वैल्यू 2 वो यहाँ पे मिलेगा, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है तो यहाँ पे मिलेगा, तो वो q 4,2, तो अब p और q में से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस तरह की लाइन हमें मिलेगी, और कौन सी लाइन है 3x प्लस 4y, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है 4,2, q 4,2, तो ये दोनों का सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें 4,2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 दोनों में रखे तो दोनों का जो सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। इन फिगर 3.2 ऑब्जर्व दैट द टू वे लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द टू इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 4,2। वी शैल डिस्कस व्हाट इज दिस मीन इन द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जो ये 4,2 है ना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ दी लाइन, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ बोथ दी लाइन। What is it? Is the solution of both the line. So now next example number 2. Romila went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 erasers for ₹9। तो हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल और नंबर ऑफ इरेजर है, लेकिन कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर नहीं है, लेकिन उसका टोटल कॉस्ट है कितना 9 रुपीज़, कितना 9 रुपीज़।
Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Romila, and she also bought 4 pencil and 6 eraser of same kind rupees 18. लो और केटा जो केटी के जैसा किया कि सोनाली ने भी रोमिली के पास ऐसी पेंसिल और पेन देख ली तो उसको भी इच्छा हो गई कि चलो भाई हम भी पेन और पेंसिल वहाँ से जो शॉप से उसने खरीदी वहाँ खरीद के। तो उससे क्या किया, सोनाली ने 4 पेंसिल और 6 इरेजर यहाँ पे उसने ली, लेकिन पेंसिल और इरेजर का कॉस्ट नहीं दिएगा, लेकिन उसका टोटल कॉस्ट दिया गया कितना, 18 रुपीज़। तो अब हम क्या करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल को हम x कह देंगे और कॉस्ट ऑफ इरेजर को हम y कह देंगे। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन मिलेंगे। एक जो इक्वेशन है रोमिला ने जो पेंसिल और इरेजर खरीदे उसका, और जो सोनाली ने जो पेंसिल और इरेजर खरीदे उसका, 2 इक्वेशन मिलेंगे इन द वेरिएबल x एंड y। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन, लेट अस डिनोट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बाय x, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बाय x, क्योंकि x का कॉस्ट नहीं दिया गया, तो 1 पेंसिल का कॉस्ट x है और 1 इरेजर का y। देन द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय, तो पहले जो रोमिला ने जो कहा 2 पेंसिल है तो 2x और 3 इरेजर है तो 3y, और दोनों का टोटल कॉस्ट मीन्स तो दोनों का सम लेंगे तो कितना आएगा, 9। सो वी गेट द इक्वेशन 2x plus 3y equal to 9। As well as Sonali bought 4 pencil and 6 eraser, means 4x is a total cost of 4 pencil and 6y is a total cost of 6 eraser, and both का टोटल कॉस्ट कितना हुआ, 18। तो दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, 4x plus 6y is equal to 18। इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या है, कुछ नहीं, 2 इक्वेशन मिल गए इन 2 वेरिएबल्स। सो बोथ आर नोन एज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ग्राफिकली, एल्जेब्रिकली हमें मिल गई यहाँ पे, उसको हम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेट कर दिया। अब उसको ग्राफिकली किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हमें पता है, दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसके लिए दोनों का एक टेबल लेंगे, x और y की वैल्यू रखते जाएंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। इस तरह से दोनों का टेबल ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का दोनों का टेबल हमें मिलेगा। पहले x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो पहला जो इक्वेशन है उसमें से y को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो y को सब्जेक्ट बनाने के बाद उसका इक्वेशन कैसे मिलेगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस 2x/3। इसी तरह से दूसरा जो इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू रखने के लिए y को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 18 माइनस 4x/6। अब क्या है, तो x की पहले तो 0 रखेंगे, शुरुआत क्या से गणेश जी से करेंगे 0 से, तो 0 तो रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 3। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 3। 4.5 रखेंगे तो 0, और इसी तरह से 0 रखेंगे तो 3 और 3 रखेंगे तो 1। तो दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, 3, इसको हम a कह देंगे, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 0.5, 0, इसको हम b, और दूसरा वाला जो लाइन मिलेगा उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0, 3, इसको हम p कह देंगे, पॉइंट p, और 3, 1 इसको हम q कह देंगे। अब दोनों का जो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं तो हम उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा, और आपको सरप्राइज होगा कि दोनों का एक ही ग्राफ मिलता है। आप देखें, दोनों लाइन एक ही लाइन पे मिलती है, देखा आपने, अगर आप दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक ही लाइन मिलती है, मीन्स बोथ द इक्वेशन आर ऑफ वन लाइन, बोथ द इक्वेशन आर ऑफ वन लाइन। और हमने कहा कि अगर दोनों लाइन कोइंसाइड है तो दोनों के सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। सो वी प्लॉट दिस पॉइंट इन द ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द लाइन्स। वी फाइंड दैट बोथ लाइन्स कोइंसाइड। दिस इज सो बिकॉज बोथ द इक्वेशन आर इक्विवेलेंट, दोनों एक जैसे है। सो
वन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अदर। एक इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन हम इजीली निकाल, तो आप यहाँ पे देखो ना, तो जो है 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 18 है और ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है। अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x, देखो यहाँ पे 4x है, 3y दैट इज इंटू 2 दैट इज 6x, यहाँ पे 6 है, 6y है, और 9 इंटू 2 दैट इज 18। तो देखा ना आपने, दोनों इक्वेशन सेम है, और उल्टा करे वाइस वर्सा, आप इसमें से 2 कॉमन निकाले तो क्या इक्वेशन आएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, मीन्स बोथ इक्वेशन आर इक्विवेलेंट, देन दिस टाइप ऑफ केस इज हैपन, सो बोथ लाइन आर coincide by this way, and if the both line coincide then this type of solution are infinite. Now example number 3, two rails are represented by the equation x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. Represent this situation geometrically. Solution: solution of each of the equations. 2x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसके लिए y को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और इस हिसाब से दूसरे इक्वेशन को x में वैल्यू रखने के लिए y को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x बाई 4 हमें मिलेगा। x इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले इक्वेशन में x इज इक्वल 0 मिलेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट 2 मिलेगा, और 4 रखेंगे तो 0 मिलेगा। यहाँ पे आप x की ऐसी वैल्यू रखो कि हमें इंटीजर में उसकी वैल्यू मिले। इसी तरह से यहाँ पे अब दोनों में रखें तो हमें दोनों का टेबल मिल गया, तो इजीली दोनों का हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम दोनों का जो है वो इस तरह से उसका टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन ग्राफिकली वी प्लॉट द पॉइंट्स आर 0,2 एंड s 4,0 टू गेट द लाइन rs and the point p 0,3 and q 6,0 to get the line PQ. So let's draw the graph of given example. So here you can see that both the line are parallel. If you draw the graph of both the line, then both the line are parallel. So we cannot find the solution of given example. We observe in figure 3.4 that the lines do not intersect anywhere, that is they are parallel. So we have seen several situations we can represent by a pair of linear equation. We have seen their algebraic and geometrical representation. In the next few sections, we will discuss how this representation can be used to look for the solution for linear equation. In next part, we also discuss the solution of given graph. Now, let me solve exercise number 3.1. Altaf tells his daughter, अब क्या है, वो एक पजल में एक बात कहता है उसे, 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times and as old as you were then, कि तुम जब मेरी उम्र कितनी थी कि मैं तुमसे 7 years old, उसके 7 साल उससे छोटा था, कि जब तुम्हारी उम्र जितनी थी, तब जब तुम्हारी उम्र जितनी थी उससे। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मीन्स अब से 3 साल बाद, आई शेल बी 3 times एन ओल्ड, तुमसे 3 गुना ओल्ड होगा, एज यू विल बी, जब तुम उस समय जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे 3 times में ओल्ड होगा। Isn't this interesting? Represent this situation geometrically and algebraically. So solution, तो पहले हम क्या करेंगे कि बात करते हैं कि 7 years ago मीन्स 7 साल पहले, तो हमें पहले तो जो प्रेजेंट की मीन्स अभी की जो
एज है दोनों की, किसकी, अल्ताफ की और उसकी डॉटर की, दोनों की जो प्रेजेंट की जो वैल्यू एज है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि कंपेरेटिवली किसकी कंपैरिजन में दोनों बात की गई है, तो के डॉटर की। तो डॉटर की जो एज है उसे हम एक्स कह देंगे, जिसकी कंपैरिजन में जो बात कही गई हो उसे हम एक्स कह देंगे और अल्ताफ की एज को हम वाई कह देंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड कर सकते हो? सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अल्ताफ बी एक्स, उसको हम एक्स कह दें, कोई भी कह सकते हैं, उसे हम एक्स कह दें। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर वाई, क्योंकि प्रेजेंट की एज आपको पता होगी तभी तो आप कह सकेंगे ना कि 7 साल पहले मीन्स माइनस होगी और 7 साल बाद मीन्स प्लस होगी। तो दोनों किस तरह से आप फाइंड कर सकते हो? तो 7 ईयर्स अगो, 7 ईयर्स अगो मीन्स आपकी जो अभी की एज है उससे कम होगी, तो आपको डिडक्ट करना होगा उसमें से। एज ऑफ अल्ताफ क्या होगी 7 ईयर्स पहले? एक्स माइनस 7। 7 साल पहले अगर अल्ताफ की प्रेजेंट की एज एक्स है तो अल्ताफ की 7 साल पहले एज कितनी होगी? एक्स माइनस 7। इसी तरह से उसकी डॉटर है, उसकी एज वाई है अभी की, तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी? 7 माइनस वाई माइनस 7। तो ए पहले मिल गया 7 ईयर्स अगो, उसका दोनों का एज मिल गया। अब यहाँ पे उसका इक्वेशन दिया गया, क्या 7 ईयर्स अगो मिल गया यहाँ पे 7 ईयर्स अगो। अगर इक्वेशन किस तरह से फाइंड कर सके एक्स इन वाई और एक्स इन वाई में, तो उसने कहा है, पहली लाइन पढ़ते फिर से, आई वॉज 7 टाइम्स एन ओल्ड। ये जो एज है ना उस वक्त की एज दोनों की, तो अल्ताफ कहता है कि तुम्हारी जो एज है उससे 7 टाइम्स ओल्ड होगा वेर यू वेर देन, तब जब मीन्स तुम्हारी इतनी एज थी तब मेरी एज है वो तुम्हारी एज से 7 टाइम्स ओल्ड होगी। तो उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, जो अल्ताफ की एज उस वक्त की, कब की? 7 ईयर्स अगो की। 7 ईयर्स अगो में दैट इज एक्स माइनस 7, वो कितनी है? तो कि 7 टाइम्स ओल्ड ऑफ हिज डॉटर एट वेर देन, तो इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पे। उसकी जो डॉटर की जो एज है उस वक्त की एज, उस वक्त की एज मीन्स 7 ईयर्स अगो, उसकी एज 7 टाइम्स है। तो उसका इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं? एज ऑफ अल्ताफ इज 7 टाइम्स ओल्ड देन द एज ऑफ हिज डॉटर 7 ईयर्स अगो। तो बीच में क्या रखने का, एक जो है इक्विवेलेंट जो साइन है वो यहाँ पे रख देंगे, इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, लिखना पहले जो जैसे अल्ताफ बोलता जाता है उसमें 7 ईयर्स अगो, तो एक्स माइनस 7 और वाई माइनस 7 हो गया। आई वॉज दैट इज अल्ताफ एज एक्स माइनस 7 टाइम्स ओल्ड, 7 टाइम्स ओल्ड किसकी एज से? डॉटर की एज से 7 टाइम ओल्ड, 7 इंटू वाई माइनस 7, तो इक्वल टू बीच में रख देने का है। अब क्या, दोनों जो इंटरवल है उसे ओपन कर देता, तो एक्स माइनस 7 को मल्टीप्लीकेशन में लिख देते 7 वाई माइनस 49, तो वाई 7 वाई को इस तरफ और 7 को इस तरफ भेज देंगे, तो x माइनस 7 वाई इज इक्वल टू माइनस 42। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैव गॉट इट हियर। सो यहाँ पे पहला इक्वेशन हमें मिल गया, जो पहली बात अल्ताफ ने की थी उसकी डॉटर से, तो पहला इक्वेशन हमें मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन तो क्या उसकी दूसरी बात में से मिल जाएगा, क्या? ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स अब से 3 साल बाद, तो हम क्या करना, उसमें ऐड करना पड़ेगा, कितना? 3 ईयर्स हेंस। सो एज ऑफ अल्ताफ क्या हो जाएगी? x प्लस 3, प्रेजेंट की एज प्लस 3 ईयर्स, एंड एज ऑफ हिज डॉटर को क्या हो जाएगा? y प्लस 3। फिर से पढ़ते हैं, क्या कहता है वो? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 टाइम्स एन ओल्ड एज यू विल बी, 3 गुना ज्यादा उसकी एज हो जाएगी। तो उसे किस तरह से लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अल्ताफ सेज दैट 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ दैट इज x प्लस
3 and y plus 3 x plus 3 आई शील बी 3 टाइम्स किससे, उसकी डॉटर की एज से 3 टाइम्स ओल्ड देन एज वेल एज शी विल बी, और बीच में क्या रख देने का है, इक्वल टू। तो इक्वेशन मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हम क्या मिल गया लास्ट में, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इंटू 2। सो यहाँ पे हमें दोनों ही एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हमें मिल गया। Therefore the algebraic representation is x minus 7y is equal to minus 42 and x minus 3y is equal to 6। अब क्या करना, कुछ नहीं, दोनों का एक टेबल बनाएंगे, उस हिसाब से दोनों का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले इक्वेशन है हमारे फॉर x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें इस तरह का कुछ टेबल मिलेगा x और y का। x यहाँ पे y की वैल्यू रखी है उसने, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, x को y की वैल्यू में रखनी है, तो क्या करेंगे हम, y की वैल्यू रखनी है तो x को सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने x को सब्जेक्ट बना लिया। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ और x की वैल्यू फाइंड करते जाओ। y की वैल्यू 5 तो x की वैल्यू माइनस 7। आप ऐसे ही एज्यूम करके और ऐसे डिसाइड करके रखो भी इसकी वैल्यू ऐसी रखो को क्या मिलेगा, हमें नियर अबाउट मैंने कहा ना कि 1 to 10 के अंदर ही उसका आंसर आए, वैसे ही वैल्यू में रखनी है। अब y की वैल्यू 6 रखी तो उसका आंसर क्या मिला, x की वैल्यू क्या मिली 0, और y की वैल्यू उसने 7 रखी तो x की वैल्यू क्या मिली 7। तो इस तरह से आप दोनों में से किसी को एक की वैल्यू रखे तो दूसरे को सब्जेक्ट बना लेना है इक्वेशन में से। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसमें भी हम y की वैल्यू रखेंगे तो x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y। तो अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, उसका टेबल बनाते हैं। अगर y की वैल्यू 0 रख दे आप तो x की वैल्यू 6 मिल जाएगी। अगर y की वैल्यू आप -1 रखें तो उसकी वैल्यू 3 मिलेगी। अगर y की वैल्यू -2 रखेंगे तो 0 मिलेगा। तो अब क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट है a b और c। a के कोऑर्डिनेट -7 5, b के कोऑर्डिनेट 0 6 और c के कोऑर्डिनेट 7 7। इसी तरह से p q एंड r, p का वैल्यू उसके कोऑर्डिनेट p 6 0, q का कोऑर्डिनेट 3 -1 और r का कोऑर्डिनेट क्या है 0 -2। तो 3 पॉइंट दोनों के हैं, तो दोनों के 3 पॉइंट रख के उसके ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह का ग्राफ हमें मिलेगा। यहाँ पे माइनस वैल्यू है तो माइनस में भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो दोनों के इस तरह से हम उसके दोनों की वैल्यू रख के उसको ग्राफिकली हम उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज फॉलोज गिवन। आप यहाँ पे पॉइंट लिखे, यहाँ पे ए बी और ए सी, और उसके कोऑर्डिनेट भी साथ में लिखे इस तरह से -7 5 0 6 और यहाँ पे 7 7। और बाद में जो लाइन आपने ड्रॉ की है उस लाइन को भी लिख डालें, x माइनस 7 इज इक्वल टू -42। और यहाँ पे जो हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करी तो उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे p दैट इज 0 -2, q दैट इज 3 -1 एंड r दैट इज 6 0। और उसकी लाइन ड्रॉ करने के बाद उस लाइन पे उसका इक्वेशन लिख डाले x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। As well as now we want to find the next example. Example number 2. The coach of cricket team buys 3 bat and 6 balls for rupees 3,900। यहाँ पे जो बॉल और बैट्स की जो कॉस्ट है वो दी गई नहीं है, जैसे अकेला का था इक्वेशन वैसे ही। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड अनदर 1 बैट एंड 3 more balls of the same kind rupees 1,300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। आप इजीली आपको कर सकते हो सॉल्यूशन। सो पहले लेट अस द कॉस्ट ऑफ द बेट इज x। हमें यहाँ पे आपको कॉस्ट नहीं दिया गया, टोटल कॉस्ट दिया गया है, मीन्स यहाँ पे बॉल और बैट्स का कॉस्ट हमें फाइंड करना है। तो x है उसको हम बैट का कॉस्ट और y को बॉल का कॉस्ट हम कह देंगे। सो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू ₹y। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वी गेट द एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन एज इस तरह से। तो पहला इक्वेशन दिया गया है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स मीन 3x + 6y इज इक्वल टू 3,900।
then the total cost of 3 beds is 3x, rupees 3x, and the total cost of 6 ball is 6y, rupees 6y. From the data, the total cost is 3900 rupees. So the equation we get 3x plus 6y is equal to 3900. और आप देख सकते हैं दोनों साइड में से 3 है वो कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन निकाल देंगे 3, तो क्या बचेगा 3x में से x, 6y में से 2y, और यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1300. सो पहला इक्वेशन है हमें यहाँ पे मिल गया. इसी तरह से दूसरा इक्वेशन है, क्या कहा गया है कि सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ वन बेड, लेटर शी बाइज वन अनदर बेड एंड 3 balls, मीन्स the one bed cost of one bed is x rupees and the total cost of 3 balls is 3y. From the data, the total cost of 13 means that is x plus 3y is equal to 1300, that is 1300. Thus the equation x plus 2y is equal to 1300 and x plus 3y is equal to 1300 represent the given situation algebraically. Now we want to draw the graph of both the algebraic equations. So first equation 3x plus 6y is equal to 3900. y की वैल्यू रखने हैं तो x को हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो उसका टेबल मिल जाएगा इस तरह से. और इसी हिसाब से यहाँ पे हम क्या करेंगे, x और y की जो हम पॉइंट्स रखने वाले हैं उसको हम उसका जो मेज़र है वो 1.1 हम क्या करेंगे 100 में ले लेंगे. 1 पॉइंट है 100, 200, 300, 400, 500, 600, इस तरह का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो इस हिसाब से इसका ग्राफ किस तरह मिलेगा, ऐसा तो ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा यहाँ पे. और दूसरा जो ग्राफ है, दूसरा जो इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू रखनी है तो x को हम सब्जेक्ट बना लेंगे तो 1300 माइनस 2y, और उसका टेबल इस तरह से मिलेगा हमें. तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकली इस तरह से हमें मिल जाएगा. तो इजीली अगर आपको कोई ऐसे पजल दिए गए हो तो आप उसमें जो अननोन वैल्यू होगी, यहाँ पे आप कॉस्ट देखते थे वो अननोन था, एज था वो अननोन था, तो आप उसको x और y और कोई भी दूसरा जो है वैल्यू है, जो वेरिएबल है, उसे एज्यूम करके आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 3.1. देयर इज गिवन वन एग्जांपल नंबर 3. इट इज सिमिलर टू दिस एग्जांपल. फाइंड द सॉल्यूशन graphically and algebraically and you can solve it easily. If you can find any doubt, then you can discuss it and we solve it.